लो अले कमरुल अंबिया साहब दी ज़बानी जनाब दास्तान बयान हुई है। जी 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 अंबिया दा चांद अंबिया दा चंद मसीह साहब खतून नूं नवांदे पाए गए ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੜਾਇਆ ਚੋ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੜਾਇਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕਰ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਏ ਵੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਨਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम ज़ैद भाई। अच्छा के भाई को 2 फोन है मेरे YouTube चैनल पे वीडियो चढ़ी है, जो जवाब आया सुन लो जी। जी मैं YouTube चैनल ओ ज़ैद पे सुनने वाले ओ सुनने ओ जवाब सुन लेने ओ सुन लेने सके तो आ जाओ, हवाला ले लो। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ और रजी बेचारा ने बड़ी ट्राई मारी, और मैनू पहुंच गया जेडे अवैस नूं हवाले देंदा रहा। और पोप ग्रेगरी ने कह दिया था, पोप ग्रेगरी ने वो कह दिया था। बेटा अब्बे दे सामने पेश करो ना आके वाला, अब्बे दे सामने क्यों नहीं करते? मैं तो अवैस से रानी अवैस साहब पहुंचे ने उत्ते वाला लैन। भाई तुसी क्यों पहुंचे वे वाला लैन? वजह अवैस दा ताल्लुक ही कोई नहीं उहदे नाल हवाले नाल। अवैस का टॉपिक ही नहीं, अवैस की स्टडी नहीं। अवैस क्यों जा रहा वाला लैंड?
इधर आओ वाला साहब नु दियो आके वाला। सर ये हवाला दोबारा पढ़ दें, कुछ नए लोग आए हैं, उन्होंने शायद हवाला सुना नहीं है, अगर हो सके तो ये दोबारा पढ़ दिया जावे। मैं वाला दोबारा पढ़ देता हूँ जी, मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, आपका बस हुक्म चाहिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कितनी बार जमाते हैं से कहा कि खुदारा सच बोलो बेशर्मो, कबूल करो जो तुमने 2 नंबरी की है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, हमने बाल दिखा दिए, हमने सर दिखा दिया है, हमने पैर दिखा दिए हैं, हमने आम औरत को रंडी बना दिया है, बेशर्मो और दज्जाल के मानने लो, दज्जालो। ये लो फिर, अब तुम्हें हम दिखाते हैं वाला। इसमें मसीह भी होगा, बाल भी होंगे, तेल भी होगा, पानी भी होगा, सारा कुछ होगा, औरत भी होगी। मैं जोड़ू इसको रंडी वाले के साथ, अब खुशी खुशू जोड़ो इस हवाले के साथ। इसमें बीवी भी है और वो लड़की भी है। बड़ायर साहब समझ रहे हो मैं कितने जा रहा? पर हम बिल्कुल तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है। इस हवाले में बीवी भी है, वो औरत भी है, मसीह भी है, फिजिकल कांटेक्ट भी है, सारा कुछ ही है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। हम जो है वो सवाल हम नहीं जाना चाहते उस हरकत पे। हमारी वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हम कर नहीं सकते। क्या हमने नहीं मैया पढ़ी हुई? ये चीजें हम नहीं पढ़ सकते। मान जाओ मिर्जा गुलाम अहमद ने बाइबल पे झूठ बोला है, मानते क्यों नहीं हो बगैर? तो मान जाओ। ये लो सुन लो जी हवाला, फिर एक बार दोबारा सुन लेते हैं। सुनो जी जरा, ले जी आपको दिखाए। ये पूरा दिन बैठ कर ये बकवास अपने मुंह से निकालने वाले, इनको जरा मैं सुना 1 सेकंड होल्ड कर ले, ये सुने मुझे जरा। 30 सेकंड दे, मैं नीचे पीछे हाँ से जी। यूट्यूब ऑन कर दूं। होल्ड करें जरा, ये सिर्फ 30 सेकंड। जी जी कर लें जी, कर लें जी जी जी। वो नीचे सीकर भाई हमारा सवाल नंबर भी लिख रहे हैं भाई, जिसको शक कुछ चेक कर ले। सीकर भाई इस हवाले में सारा कुछ है, जी, जी, बस जी। मर्जियों में गैरत नहीं है। ये गैरत नहीं है, है। सारा कुछ है इस हवाले में, मैं ये नोट कर रहा था। वो कहते मरज़इयों में सब कुछ था, बस हया ना थी। वो गाना नहीं था, वो हमसफर था। चलो कोई नहीं जी बिल्कुल। यूट्यूब स्ट्रीम, अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल दूसरे वो- अकाउंट में एक्चुअली है जी, जी, MAFZALCH। अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में तो मेरा चैनल आ जाएगा। जी प्लीज कंटिन्यू। बट ऐसा वैसे मैंने लगता है तुम चेंज भी कर सकती हो एडिट करके, अगर एडा ही औखा। चलो ठीक है, तुम अपना रखे माजरत। अच्छा सुनियो जरा, बड़ायर साहब वो किसे क्या खूब क्या है शायर ने, और कहती बैत करने वाले में सब कुछ था। मज़हियत की बैत करने वाले में सब कुछ था, बस हया ना थी। वो हम सफर था, और आगे की सी मैंने भूल गया। जरा आगे सुनियो। ले जी अब हम आपको हवाला देने लगे जी, जो मातम मचा हुआ है पिछले 10 दिन से। वो कहते हैं जनाब 1509 रिवायत नंबर है, सीरतुल महदी है, पेज नंबर 285 है, जिल्द है पंजम। उसमें लिखते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरमा आयशा साहिबा बिनते अहमद जान साहब खात पिशावरी जोजा चौधरी हाकम अली साहब ने बवास्ता मुकरमा मोहतरमा मुराद खातून साहिबा वालदा खलीफा सलाउद्दीन साहब बजरिया तहरीरन किया कि 1906 में जब मेरी वालदा मरहुमा फौत हो गई थी तो मुझे अम्मा जी अहलिया खलीफा अव्वल अपने घर ले गई। जी अब ट्रांसफर मैं यहाँ पे बड़े हाशिए चढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन कहना नहीं चाहता अभी। ठीक है आगे चलते हैं जी। नाश्ता वगैरह कराया, फिर 4-5 यौम के बाद हजरत, मैं नाम नहीं लूंगा जी, मैं कहूंगा मिर्जा साहब की बेगम मुझे अपने घर ले आई। यहां अब मिर्जा साहब की बेगम का बावर्ची खाना है, वहां मेरा सर धुलवा रही थी, एक औरत मेरे सर पर पानी डालती जाती थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन मेरे सर को साबुन मलती और धोती थी, वो औरत ज्यादा पानी डाल देती थी।
इतनी देर में मसीह माऊद वहां टहल रहे थे। मसीह माऊद ने लोटा इसके हाथ से लेकर मेरे सर पर पानी डाला। हेलो जी, तुसी बाइबल ते पेट रहे हो, इथे मसीह आप पा रहे हैं गैर महरम औरतां दे सिर ते पानी। अच्छा जी, फिर हजूर ने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाते थे और बेग के बाद कंघी करती जाती थी। हजूर फरमाया कि इस तरह जुएं निकल जाएंगी। है जी। तो दोस्तों, ये है वो हवाला जिसमें मसीह भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है, बाल भी मौजूद है, लिक्विड भी मौजूद है। कमी है तो एक रंडी की। माजरत के साथ मेरे अल्फाज में आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने यह 2 नंबरी कर करके इस कदर किज़्ब बयानी की है। मेरे पास इस तरह के 300 हवाले और पड़े होंगे, इस तरह के 300 हवाले और होंगे जिनको अगर मैं 2 नंबरी करना चाहूं मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें इसमें यह भी बता सकता हूं खुशू खुजू के हवाले में, जिसपे मीर सलीम की चीख निकल गई थी। क्यों भागा था मीर सलीम? क्यों भागा था? उसकी 2 नंबरी पकड़ी जाने लगी थी ना, भागा क्यों? खुशू खुजू के हवाले में मिर्जा साहब ने 2 करैक्टर बयान किए हैं, एक है बीवी और एक है रंडी। यहां इस हवाले में बीवी भी है, एक औरत भी है। अगर हम तुम जैसे गंदे गलीज हो, बनाओ उसको रंडी। बेशर्मो, कैसे जाहिल हो गए यार। वो मैंने आपको भाई साहब हवाला दे दिया है, ये सीकर ने झूठ बोला है। वालिद साहब को दो ना वाला आके, ये फादर अपना पोप ग्रेगरी वालिद साहब को दो। आपका फादर जो है 10 दिन पहले पोप ग्रेगरी के बारे में पढ़ चुका मैं बेटे, चैट जीपीटी वो पढ़ चुका फादर ग्रेगरी के ऊपर। अच्छा जी, मुख्तरन जब वो सर पे पानी डाल रही थी औरतें, उसके बाद क्या हुआ, जरा एक दफा वहां से प्लीज जरा दोबारा कर दे भाई। सर पे देखे, सर पे पानी। जी 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 गुजारिश कर रहा था कि जो आपने दावा किया था ना, सारा कुछ भी था उसमें, सर भी था, औरत भी थी, मसीह मौद आप भी थे। एक और नई चीज भी निकल आई उस वाले में से, मसीह मौद के हाथ में वो डोंगा भी था जिसे सर पे डाल रहे थे। हाँ, इन्होंने एतराज कर दिया। डोंगा नहीं था, लोटा था, लोटा। हाँ, लोटा। हाँ, लोटा था, लोटा। ऐसे ही बेगैरत मर रही है। नहीं, कुछ नए दोस्त आए हैं, शामिल हुए हैं। अच्छा, जरा बयान करें थोड़ा सा फिर। मैं बयान कर देता हूं कि देखे, एक खातून है, ठीक है, मैं अब मफहूमन बयान कर रहा हूं। थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि चढ़ाऊंगा। आप सीकर साहब, आप एक ऐसा हवाला पेश कर रहे हैं और पेश कर दिया है ऑलरेडी। 2 दफ़ा आपने उसको भी पढ़ा है, तीसरी दफ़ा भी पढ़ने लगे हैं। मसीह मौद साहब खातून को नहलाते हुए, उसमें उनकी अपनी अहलिया भी शामिल हैं और ऑब्वियसली खातून जिसको नहलाया जा रहा है उसकी जुएं निकाली जा रही हैं। मसीह मौद नामहरम खातून की जुएं निकालते हुए। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सही हो गया। मैं इसको मफहूमन फिर बयान कर देता हूं कि जी वो एक खातून को लाया गया, खलीफा अव्वल की बेगम ने इनको दिया, इन्होंने नाश्ता कराया बावर्ची खाने में। बेगम जो थी मिर्जा साहब की, वो उसके सर धुलवा रही थी और वो खुद इसके सर पर जो है पानी डाल रही थी और मुलाजमा डाल रही थी। मसीह मौद वहां पे वॉक कर रहे थे। मसीह मौद ने ये मंजर देखा तो मसीह मौद ने लोटा खींच लिया, मसीह मौद ने लोटा ले लिया, रहने नहीं हुआ उनसे और कि खुद ये सर पे पानी डालने लगे। ये थोड़ा सा रुक जाए यार, उनसे रहने नहीं हुआ गलत काम होते देखकर। नहीं, मसीह मौद ने ये कहा, मैं खुद नहीं पानी हुआ। डालता हूँ। ये क्या मसीह मौद ने ये कहा कि ये जुआं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं निकलनियां, ये मैं ही कढ़नियां पैणियां ने मैनू। जी बड़ाई साहब, ये ना सीकर भाई, ये जो अब हवाला है ना, 1 मिनट, जो हवाला रिकॉर्डर में है अभी इसकी नहीं, AI अभी नहीं बताना आपने, अब नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बता नहीं रहा हूं मैं, नहीं बताना। क्लोज नहीं हवाला नहीं बता रहा, हो। मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक।
हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उसी की कह रहा हूँ। खलो जो इनको लितर पोला ये अभी बंद नहीं होना डिकोडर भाई, ये लितर पोला चल रहा है। इन बेशर्मों ने, आप अंदाजा करें, 10 दिन दजल, कितने दिन हो गए बड़ा साहब? कम से कम 10 दिन तो हो गए। 10 दिन से डेफिनेटली बेशर्मी, हट धर्मी और ढिठाई का सबूत देते हुए भाई लोगों के सामने एक्सेप्ट करो लोगों के सामने। तारिक चौहान ने किया नहीं एक्सेप्ट। जनाब, द मैन हैज इंटेग्रिटी जी। वो उधर के मीर सलीम आया है, बुलाए हवाला देने आ गए। हवाला की रहमतुल्लाह करानवी साहब का भी इंशाल्लाह हम आपको बड़ाए साहब आपको सामने बिठाएंगे, गवाह बना के सामने बिठाएंगे, आपको शुगल दिखाएंगे इनका। यार क्या कह रहे हैं? सीकर भाई 1 मिनट रुकना, सिर्फ ये 1 मिनट, किस सिर्फ कदर 1 मिनट तक रुकना जानो? आपने, सिर्फ 1 मिनट रुकना। अफजल वड़ैच साहब एक गल दसो, ये कौन बंदा, मैंने भी जी जी। देखा इनवाइटेड किए हैं कुछ लोग आप लोगों ने, ये कौन बंदा आपका मॉडरेटर जो इस तरह के बंदों को इनवाइट कर रहा है, बासी से बंदों को इनवाइट कर रहा है, ये आप कर? कोई गल नहीं, वेख लेने जरा टॉपिक पे आ जाए, सीकर भाई जरा मैं लेट आया, हवाला जेड़ा जो पानी लोटा सिर ते गया ना उस तो अगे शुरू करियो यार, रिकॉर्डिंग करनी। मैं करना जाहिद भाई, ये करना एक मिनट टॉपिक ये कौन नीचे लिख रहा है यार? ये नीचे सीकर भाई ये मना करे, कौन लिख रहा है नीचे? मसीह मौत गरम हमाम वाले, ये कौन लिख रहा है यार? ये तरीका है कोई? नहीं भाई नहीं, ये कोई ना करे भाई, नहीं ये ना लिखे प्लीज। हाँ, मसीह मौत गरम हमाम प्लीज नहीं प्लीज लिखना है, इस तरह के ना, नहीं कर, बिल्कुल बंद करें। नहीं राजे बंदा बन। कमेंट नहीं करने। देखे डिकोडर भाई, बात ये है कि साइयों के साथ पंगे जी, ये वाले भाई आप करें फिर मैं करूं। डॉक्टर साहब मैसेज चेक करें, वालेकुम मैसेज चेक करना अस्सलाम। डॉक्टर साहब। नहीं वो अभी ये वाले भाई अभी नहीं ना, अभी नहीं ये वाले भाई, हर काम स्टेप बाय स्टेप, अभी कुछ वायदे कोई नहीं। हाँ ये जिस तरह ये फादर ग्रेगरी है ना यार, ये जो ग्रेगरी और ये पोप का हवाला, ये जिस तरह ये चवल मार के वो आज ये पहले हम पढ़ चुके हुए इसको, इसने बहुत अपनी तरफ से फनकारी लगाई है। और ये देखिए करानवी साहब ने क्या कहा है, फलानों ने क्या कहा है। नहीं भाई, मिर्जा साहब नहीं बचते। मिर्जा साहब ने वहां पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड, अपने ग्लव्स, अपने फिंगरप्रिंट्स, अपना तो क्या कहते हैं थंब इंप्रेशन, आई स्कैनिंग जो होती है, अपना रेटिना स्कैन मिर्जा साहब ने दे दिया है। मिर्जा साहब ने, बड़ाई साहब, ये कबूला है कि मिर्जा साहब इन तमाम वाकयात पर ईमान रखते हैं जो बाइबल के अंदर जीसस के बारे में किए गए, वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं वो वाकयात सारे के सारे। ये हम साबित करके दिखाएंगे दुनिया को, उन सब वाकयात पे उनका ईमान है। उनका अपना अकीदा था कि ये बाइबल के वाकयात जो जीसस के नाम से मंसूब है वो सब ठीक है। ये मिर्जा साहब का अकीदा है अपना। मैं चैलेंज कर रहा हूं इसके ऊपर भी, आप तुम्हारी जान सो की छूटेगी इस पे। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने देखे ना जी, कितना आसान था ये कह देना कि जी मिर्जा साहब गुस्से में आए, गुस्से में आके उन्होंने आशिया बर्दारी कर दी। मिर्जा साहब गुस्से में आए, उन्होंने खिलाफ वाकया बात कर दी, मान लेते ना, क्यों नहीं माना?
इस मोहम्मद तुम्हें भूल गया? नहीं थे मानते, कैसे मनवाया था? कुफर और इस्लाम तुम्हें भूल गया? कैसे तुमने अब लोगों को कहते हो काफिर काफिर कहते फिरते हो लोगों को, अब खुलेआम कह देते हो? मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, हम मनवाएंगे तुम्हें, हमें ड्रिल करना आता है। तुम लोग नहीं बच सकते इस काम से। और अभी तो तुम जितने पंक्चर लगाओगे, जितना मुंह खोल रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और हम देख रहे हैं तमाशा कि कर लो जो करना है। काश मिर्जा साहब ऐसे उठते, बेटे तू भी मिर्जा साहब के पीछे छुप सकता। तू तो क्यामत के दिन मिर्जा साहब के पीछे नहीं छुप सकता। हम तो अपने नबी के पीछे छुप जाएंगे क्यामत के दिन भी। अल्लाह करे हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए, हमारा नबी तो हमें बचा लेगा अगर हमारे माल कुछ बेहतर हो। तुम्हारे नबी का तो बारबेक्यू हो रहा हो ना ऊपर बैठ के, जिसको तुम माने बैठे हो। वहां तुम अपने हाथों को काटोगे, हाथों को दंदियां काटोगे अपने हाथों में। क्या काश काश हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को दोस्त ना बनाया होता। ये तुम हाथ काटोगे अपने। ये कुरान में बातें लिखी है, कुरान कभी ये कुरान में बातें लिखी है, कुरान कभी पढ़ो तो सही। तुम्हारी औकात तो यह कुरान पाक पढ़ते हो, एक आयत में लिखा होता है और अल्लाह ताला ने तुम पे अपना फजल किया। अच्छा, इसका मतलब नबूवत यहां से निकला, नबूवत जारी होगी, ये नबूवत जारी होगी। जिसने सारी जिंदगी कुरान पाक सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि कुरान पाक के अंदर नबूवत जारी हो जाती है, उसने क्या लेनी हिदायत कुरान पाक से? हम छुप सकते हैं अपने नबी के पीछे। कभी किसी मुसलमान को देखा है ये कहते हुए कि यार तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्यों मुझे पेश कर रहा है? देखा कभी किसी मुसलमान को? तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। आज इनका मरज़ई कह रहा था कि कुरान पाक में मसीह मौद का मुतअद्दिद जगह पे जिक्र है। एक जगह जिक्र यह भी है कि जो ईमान लाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो नाजिल हुआ और उससे पीछे जो हुआ, और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, कहता है इसमें आखिरत से मतलब है मसीह मौद की बातें। हेलो, आखिरत से मतलब है मसीह मौत की बातें, आखिरी दौर नहीं या क़यामत नहीं, मसीह मौत की बातें। या जी मसीह मौत का जिक्र जी बच्चे। और जिन बातों पे तुमने ईमान लेके आना है उन बातों को ऑन ही नहीं करते तुम लोग, उस पर तुम्हें शर्म आती है। बेशर्मो, एक्सेप्ट तो करो। जब भी तुमसे जवाब मांगा कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये क्यों किया है, ये काम क्यों किया है, तुम कहते हो वो देखो रहमतुल्लाह करारवी साहब ने भी किया है। यहां पर किसी नबी को क्यों नहीं लेके आते हुए? ये मेरे ख्याल में जी ये शैंडलर बिंग साहब आए हैं रॉजर फेडरर की फोटो लगा के शायद। बड़ा साहब देखो जी, कॉल तो लो, बहुत मेरे ख्याल च दलाइल रखते ने, दलाइल कातिया ते बराइने सातिया इन्हां कोल है ने, इन्हां जरा चुको जी। फादर ग्रेगरी, पोप सीकर भाई, इसको मैंने ना लिखा, इस आईडी को मैंने ना ब्लॉक किया हुआ है। सीकर भाई, इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। यकीनन मैंने ब्लॉक किया तो ये शातम ही होगा, इसलिए ब्लॉक किया होगा। इसको रहने दे, ये भी नाम चेंज किया, ये है कोई शातम ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि जब मैं जाता हूँ ना इनवाइट के ऊपर तो लिखा था कि तुम इसको अनब्लॉक करो उस्मान भाई और तमाम बाय द वे ओके हो गया। जो मेरा दावा है ना, जी जी बड़ा साहब बोलो, फिर मैं जो मेरा दावा है, जो मैंने लर्न किया है, जो देखा है, जो सीखा है सो फार ब्लास्मी के ज़िमन में, हाई ब्लास्मी की एग्जांपल अभी इस कमेंट लाइन में नज़र आ रही है। हाई ब्लास्मी। अब यार सीकर साहब ये कहते हैं कि ये फिर शातमियत करते हैं मुसलमान। इसलिए करते हैं कि हमारा वाला जिस कौम से पढ़ा है उसका मज़हब ही शातमियत है। बिल्कुल। जनाब मोहतरम नाम की आईडी मैं जिन्नी भी को फर्ज करो जोशे खताबत भी कीती होवे, मैं को गाल कटी मिर्जा साहब देख लो। ए मुसलमान दा ना, मुसलमान ते शातम दे विच यही फर्क होएगा।
जनाब मोहतरम ने उस लेवल की यहाँ पे ब्लेसमी लिखी है विद इन लास्ट फ्यू मिनट्स। ज़ाहिर है किधर है मैं वो कमेंट तो बेचारा? नहीं देखता, मुझे किसी ने, मैं स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करता हूँ अभी आपको। सीकर भाई मैंने उसको म्यूट कर दिया था उस कमेंट के बाद, पर स्क्रीनशॉट है उसका। फॉरवर्ड कर दो सीकर साहब। सीकर भाई इसी हवाले के ऊपर एक सवाल है यार, अगर जवाब दे सके तो। मसीह मौद ने क्या मारने आना था तो जो जुए मारता रहे? नहीं जाहिद भाई एक मिनट ठहर जो जरा, ओ मैं उस हवाले ते हले फिर आना वा। लेकिन बात ये है भाइयों, आज आप अंदाजा करो ना, आप अंदाजा ये करो कि आज जमात के फनियर बैठकर कितने दिनों से मिर्जा गुलाम अहमद को नहीं सच्चा साबित कर पा रहे, उसकी तहरीर के ऊपर नहीं सच्चा साबित कर पा रहे। यार एक बंदा खुद असूल दे रहा है कि मेरी कोई एक बात ऐसी लेके आओ जो मैंने अंजीलों में से ना की हो, कोई एक बात ऐसी लेके आओ। अभी तो एक बात रखी है तुम्हारे सामने, तुम्हारी पी हो गई है, चीखें निकल गई हैं तुम्हारी पहली बात के ऊपर ही। अभी तो हमने यह दिखाना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है मिर्जा गुलाम अहमद ने, चोरी का इल्जाम। तब क्या करोगे? तू भी पिटेगा उमर उमार, तुझे मातम करना चाहिए। जिस गलीज जमात में तू है, तुझे तो तेरा तो मातम बनता है, तुझे तो वैसे ही मर जाना चाहिए इस शर्म के साथ ही कि तू किस गलीज जमात के अंदर है। हम तो पिट इस बात पे रहे हैं कि यहां पर कॉन्फिडेंस देखो इन लोगों का, इन बेशर्मों का, अल्लाह के नबियों पर जुबान दराज करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। वड़ाइट साहब मैं दावा कर रहे थोड़ी बराड़ ते फेर बाइकाट हो गया तो मैनू ना कहना, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਸੂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद दा अकीदा है, ओदा ईमान है कि यह वाकयात सारे होए ने रियल च, एवें ही होए ने जिवें बाइबल च लिखे ने। और दसो साबित करके दवांगे असी। अगेन मैं फिर भी तो नबी मननगे। शिकर भाई जी बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम शिकर भाई, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨੇ ਰਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਲਮੀ ਜਹਾਦ ये वो। वल्लाह लज़ीम मैं कसम चुक्या ना कि जो सिचुएशन इस टाइम इस खिते दे विच बनी है, वो जो फरमाने रसूल सन वो मनोवन इंज ही हो रहे ने। एक रत्ती बराबर का फर्क नहीं आ रहा, एक रत्ती बराबर का भी तुसी फर्क आखो ना, तुसी इस खिते दे विच तुसी वेखोगे सेम टू सेम हदीसे मुबारका पेशन गोइयां तुसी चुक के वेखोगे सेम टू सेम इंज हो रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਐਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਰ, ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਅਸੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀਲ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੜਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ पूरी जमात रल के भी नहीं दे पा रही, सबूत नहीं दे पा रही।
हमने अवैस भाई को जाके दे दिए हैं ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਵੈਸ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਇਹ ਪਾੜ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ हमने अवैस भाई को हवाला जात दे दी है इधर दे दे इधर दो ना अब्बा जी नू और ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਐਡੇ ਜੇ ਸੋਖੇ ਹਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ आज इन्हें याद आ गया है कि ले जी ये वही मरियम थी 4 दिन पहले तू आप अपने मुंह चो कटिया मीर सलीम के सामने कि मीर साहब ये सीकर कंफ्यूज्ड है असल में ये 2 वाकयात है ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜॉय कर रहे हैं दोनों ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ नानी ये मुंह ते अल्फाज देना जी ये दो वाकयात नहीं है। उसके बाद उसने भी तो कहा था 2 नहीं, ये 3-4 दफा 3-4 जगह पे हाँ 3-4 जगह पे आया हुआ है तू नीचे मैसेज कर तेरी इतना ही लेवल है तू नीचे मैसेज कर बेटे तेरे में तो हिम्मत नहीं ऊपर बात करने की वडायर साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਮਰ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ आपको सुन के लगता है जवेद अहमद गामदी साहब बात कर रहे हैं हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਂਦਾ हाँ अंदाजा करे एक दफा ये गलती से वडायर साहब हाथ बचाने का लग गया ये लाइव पे चढ़ गया गलती से आ गया लाइव के ऊपर इसको पूछा कि यार ये जो कलमा है तुम लोगों का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मुसलमानों का तुम्हारा सेम कलमा है कहता हाँ सेम कलमा है सेम कलमा है बिल्कुल सेम कलमा है बाय द वे ये भी पढ़ के हुआ है ना इसका क्लेम है नहीं पढ़ के क्या होना है ये पैदाइशी है जमांदुर हुए जी हाँ मेरा असल चेहरा पढ़ के नहीं आया वडायर साहब पढ़ के आया अच्छा वडायर साहब सुनो जरा नहीं सुनो जरा हाँ आयो जो कंधा फाड़ लेते ना पीछे बैत करते हो सारे एक दूसरे हाथ रखते हैं हाँ जी अच्छा वडायर साहब सुनियो जरा ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਲਮਾ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ है मैं क्या जी अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद को कलमे में शामिल करे तो क्या कलमा सेम होगा कहता नहीं वो देखना पड़ेगा फला करना पड़ेगा वडायर साहब मैं नाल ही मैं क्या इन्हों ना मैं कहा वो अगर कोई बरेलवी अहमद रजा बरेलवी साहब को कलमे में शामिल कर दे और कि वो भी कलमे शामिल हो कलमा सेम रहेगा कहता नहीं बिल्कुल नहीं कलमा चेंज हो जाएगा अंदाजा कर देखो इन्हों का हाल चेक करो ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ एग्जैक्टली झूठे इंसान हाँ शुक्र है मान गया कहता उसामा बस आप ही मान गए तले एक मिनट सीकर भाई एक ही कहता थी कि सीकर बोलता है तो मुझे क्या लगता है गामदी बोल रहा जवेद गल क्लियर करो जरा ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਾ ਗਾਮਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਗਾਮਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰੁਦੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਦਾ ਦਮਿਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨਹਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਹੱਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਮਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ और जी ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ बचपन तो पढ़ते आए हैं स्टोरी ठीक है जी डूबते को तिंकेगा सारा ये बेचारे को पल्ले है की है दसो ना की पल्ले